Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So, good morning, all of you. But before starting our session, class, I want to know that why you all are not submitting your notes. Only few have submitted. Four or five people have Ma'am, submitted. I don't have your number. Who is that? Ma'am, Manvi. I am in the class 9th A group now. WhatsApp group. I am there in the class 9th A WhatsApp group. Okay, I will be sending Okay, it. ma'am, I'll check it there. I will give in today's class. Don't worry. But send your notes quickly before by 24th, because after that you will be having callings and all that. Okay, so let's start our class. Okay. So I told you the structure of atom revision all together combined to form. So one day I'm planning to take subjective and the other day I will be taking your MCQ. Okay. So let's see that only this much is the attendance. Wait, let me. Okay. So let's start. Let the children, little bit more children start coming. The question which I have prepared earlier only, that why I will start, because last time. Okay. So which subatomic particle is absent in the ordinary hydrogen atom? Rishabh? 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 Yes, ma'am. Which subatomic particle is absent in ordinary hydrogen atom? Are you there or not? Okay. Agam? Agam? Good morning, ma'am. Good morning. Rishika, your answer is correct. Okay. When I'm asking you the question, you can tell me whether you know or don't know. Simply, if you're not knowing, then you can tell me, madam, don't know. Bhavik? Bhavik, Yes, ma'am. tell me which subatomic particle is absent in ordinary hydrogen atom? Ma'am, proton, neutron. Okay, correct, good. Next, Bhumi. Bhumi, Ma'am. Yes, ma'am. postulates of Bose model. Postulates of Bose model. Ma'am, please repeat. Postulates of Bose model. Don't know, ma'am. बेटा अभी एग्जाम है 4 तारीख को, आप लोग को इतना भी नहीं है, एक ही चैप्टर आ रहा है, उसको भी मैं आपको कितने दिन से प्रिपेयर कराने के बाद फिर से आपसे पूछूं, तब भी आप लोग ऐसा बोल। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था। हितैषी, हितैषी, Hiteshi, I'm talking to you. Yes, ma'am. Can you tell me the postulates of Bose model? Sorry, ma'am.
postulates of Bose model. सब अपना वीडियो ऑन करो भाई। लोअर क्लासेस में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे खुद ही अपना वीडियो ऑन करके रखते हैं। हायर क्लासेस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ यू हैव केप्ट योर वीडियो ऑफ। Hiteshi, tell me what are the postulates of Bose model? What are the postulates of Bose model? Again and again I have to ask what? Good morning, ma'am. Good morning. Millie, can you tell me? Millie, can you tell me what are the postulates of Bose model? Ma'am, I don't know. Krishika? Krishika, Yes, ma'am. can you tell me postulates of Bose model? पहली बार बताओ, आपको postulates का मीनिंग पता है? आप लोगों को postulates का मीनिंग पता है? You know the meaning of postulates? Postulate मतलब points। उस theory, उसने जो theory discover की थी उसके बारे में एक 3-3, 4-4 जो points लिखते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं postulate। तो आप मुझे क्या बोस मॉडल के बारे में कुछ वो points बता सकते हो? Any? Can you tell me? What is going on? May I? Yes, tell. Tell. First tell your name. Kavya. Okay, Kavya, tell. Ma'am, electrons orbit the nucleus at fixed energy level. Electrons orbit energy level is fixed. Yes, ma'am. और कोई point? कम से कम जो क्वेश्चन क्लास में पूछती है उसको तो पढ़ लिया करो। ये भी नहीं है तुम लोग से, तो क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ के? हर बार हर क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी तभी तुम लोग आंसर्स बताओगे। भूमि, कैन यू टेल मी? भूमि, Yes, ma'am. कैन यू टेल मी? Yes, ma'am. Can you tell me the postulates of Bose model? मैम जो ऑर्बिट है उसको एनर्जी लेवल भी, they also known as energy level orbit. Okay, and Ma'am, it is very limited in term of size. और Ma'am, the electron does not have yeah, tell. energy. Electrons are Electron do not emit any energy. electron do not emit any energy. और कुछ? Ma'am, मिनिमम 4 बेसिक इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स है, वो बता सकते हो आप मेरे को? 4 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Ma'am, orbit further from the nucleus exist at higher energy levels. Okay. Okay. Ma'am, only electrons are allowed to go inside the atom. While Okay. Raghav, can you tell me? Raghav, Yes, ma'am. can you tell me what are the postulates of Bose model? No, ma'am. Postulates of Bose model says that in the atom, सबसे पहले बेसिक से चालू करो। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है and around the nucleus electrons are moving in a particular path called as orbits. Okay, in the center of the atom there is nucleus. Around the nucleus electrons are moving in a circular path called fixed circular path called as orbits, which are given the name as KLMN. ठीक है, पहला ये हुआ। Then second thing, electrons present in the orbits do not lose their energy. Electrons present in the
ऑर्बिट्स डू नॉट लूज देयर एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिट्स में वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। अगर उसको एनर्जी लूज करना है तो उसको या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन देना एनर्जी देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स present in the orbit do not lose their energy. Done. Next, इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम जो ऑर्बिट्स जो है उसको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ऑर्बिट्स जो होता है उसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है और इन एनर्जी लेवल्स की जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है वो है 2n², n refers to the number of the orbit। क्लियर है? तो पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ इंडिविजुअलाइज्ड और द सेपरेट और फिक्स्ड सेपरेट पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, KLMN। देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स आर electron present in the orbits do not lose their energy. Okay, and the third is that orbits are also called as energy levels and which are having a capacity of 2n², which are having a capacity of electron is equal to 2n²। समझ में आया? ये बेसिक 3 पॉइंट्स है, इसको आप 4.5 पॉइंट्स में डिवाइड करके भी लिख सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दैट एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं जिनको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है जिनका नाम दिया गया KLMN। इन दिस और एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज देयर एनर्जी and the capacity of each orbit is equal, capacity of each orbit to carry electron is equal to 2n², where n refers to the number of orbit। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब आप बता सकते हो, Yes, ma'am. 10 मिनट्स बाद आपको पूछूंगी, मेरे को बता देना। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, what do you understand by the ground state of atom? Rishabh, what do you understand by the ground state of an atom? What do you understand by ground state of an atom? Rishabh, are you there? Don't know, ma'am. ग्राउंड स्टेट मतलब उसका जहां पे एनर्जी जो रहेगा वो आपका मिनिमम रहेगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल। जैसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो KLMN, तो K जो है वो आपका क्या करेगा, वो आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, Yes, ma'am. न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन है, ये K शेल है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हुआ। फिर आपका हाईएस्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट बाकी था, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। Yes, ma'am. जो लोएस्ट ma'am. एनर्जी लेवल को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर किसी दूसरे लेवल पे चला गया तो उस लेवल को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. is it possible for an atom of an element to have 1 electron, 1 proton and no neutron? No neutron. Anybody? Ma'am, may I? Yes. Yes, ma'am. Hydrogen have no neutron but one proton and Okay. ma'am. उसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और लेकिन नो न्यूट्रॉन होता है। ओके, गुड। नेक्स्ट, गौरव, Yes, ma'am. can you tell me what you understand by polyatomic ions? Ma'am, the charged atom. और आप मुझे अपनी स्क्रीन, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप मुझे अपनी स्क्रीन पे लिख के दिखा सकते हो एनी एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। Ma'am, I don't know the example. ओके, पहले बताओ कि होता क्या है। Ma'am, charged atom. चार्ज्ड एटम, चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं? चार्ज एटम तो ऐसे तो आयन हो जाएगा बेटा, चार्ज एटम को हम तो आयन्स बोलते हैं। एनीबडी? Ma'am, may I say? टेल। Ma'am, polyatomic ion
is an ion composed of more than one atom? Polyatomic ion is the ion which is composed of more than atom. Okay, correct. इस तरीके से भी बोल सकते, ठीक है. And ma'am, examples are sodium hydroxide. Sodium hydroxide, it is a compound, it is not an ion. Okay. Anybody? Ma'am, sulfur. Sulfur is not an, it is an element. Ma'am, ammonium. Ma'am, Ammonia, calcium yes. carbonate. Calcium carbonate is a compound. Carbonate is a polyatomic ion. Carbonate, ammonium, sulfate, hydrogen carbonate, ये सारे के सारे क्या है आपके polyatomic ion है. So you can write in this. Okay, is it clear? Now Methi, NaOH. NaOH is a compound. कंपाउंड इट इज. उसमें से हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्साइड NaOH के अंदर जो हाइड्रोक्साइड OH माइनस हो जो होता है उसको आप पॉलीएटॉमिक बोलते. ओके, नेक्स्ट मीति. Yes, ma'am. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी? वैलेंसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी? Are you able to tell or not? Ma'am, may I say? Yes, name please. Ma'am, Pari. हाँ परी बोल. Ma'am, valency is the combining power of an element. Combining power, combining capacity, correct. Okay, now how to find out the valency? अगर मैंने आपको valency find करने का तरीका बताया था, if an element is having 4 or less than 4 electrons, valence electron, then what will be its valency? Kavya? Ma'am, it's same. It will be same, valence electron के equal है. Correct, good. Khushil? Yes. Yes, ma'am. If valence electron is more than 4, how you will find out the valency? मैम उसको 8 से माइनस कर देंगे. Valence electron को 8 से. Good. Next, Labdhi. No. Molly. Are you there? Mridul? No. Chelna? Yes, ma'am. Can you tell me how to find whether the given element is a metal or non-metal? Ma'am, don't know. Divya? Ma'am, may I? Name? Harit? Ma'am, Kalp. What? Kalp. Kalp. Okay, Kalp, tell. Ma'am, on the basis of their characteristics. On the basis of characteristics, suppose आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है NaCl, तो आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक पता है? आप किसी भी एलिमेंट को अगर मैंने दिया है XYZ एलिमेंट दे दिया है, उसका मैंने आपको एटॉमिक नंबर दे दिया और आपको बोल दिया पहचानो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया उसका नाम क्या है, तो आप कैसे बताओगे? Don't know, ma'am. When you see an element, just see that whether it is losing electron or not. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है स्टेबल होने के लिए तो वो मेटल है, और अगर गेन कर रहा है तो वो नॉन मेटल है. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा? मेटल. और अगर गेन करता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल. और आपको कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप देखना कि उसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं. इफ इट इज अगर उसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 है, यानी कि 1 2 3, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो मेटल है, वो लूज करेगा. ठीक है. और अगर 4 या 4 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन लोग गेन करेंगे या शेयर करेंगे, एंड दे विल बी ऑलवेज नॉन मेटल. ठीक है.
तो वैलेंस शेल में 4s से लेके 8 आया तो वो नॉन मेटल है, और वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या हो जाएगा, मेटल है। 4 से लेके 8 तक नॉन मेटल, और 1 से लेके 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मेटल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इजी है ना, कि आप बस कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है कि देखा, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 या 3 है तो आप उसको मेटल बोल देना, क्योंकि वो व्हाट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर वैलेंस शेल में 4 से लेके 8 तक है तो आप उसको बोल देना वो नॉन मेटल है। ठीक है, और इतना क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट, ओके, what is now what are isotopes? What are isotopes? What are isotopes? Priyansh, what are isotopes? Yes, ma'am. What are isotopes? And what is the difference between isotope and isobar? Ma'am, atomic number and mass number is different, but they contain a same element. एटॉमिक नंबर और मास नंबर इज डिफरेंट, तो हो गया क्या, वो तो एलिमेंट ही हो गया भाई। मैं आइसोटोप और आइसोबार की बात कर रही हूँ। Ma'am, isotopes are the two elements like helium, and one is containing 14 at mass number, atomic number, and second is containing 15. Correct example. Examples of isotopes. Name? Can I know the name? Whenever you are telling the answer, I should know your name, because I should also know which children are giving me the answers, whether it is right or wrong. They are active in the class, I should know their name. So tell your name before giving the answers. Okay, tell me. Nobody knows the difference between isotopes and isobar? Ma'am, may I say? Ma'am, May I? may I say? Okay. Who is first? Who raised the hand? Tell me. Ma'am, Mehak. What is the ma'am, name? Parijan. Pari. Okay, Pari, tell. Ma'am, ma'am, in isobars, atomic numbers are different, and in isotopes, atomic numbers are same. Yes. And what else? In isobars, chemical elements are different, and in isotopes, same chemical elements but in different forms. Okay. और क्या सेम रहता है आइसोटोप्स में? Ma'am, आइसोटोप में क्या सेम रहता है? Atomic number. आपने अभी बोला सी सेम केमिकल एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट सेम हो गए तो क्या सेम हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। atomic number. और मास, आप उसमें आपका क्या उसमें आपका जो है आइसोबर्स में क्या हो जाएगा? मास नंबर सेम हो जाएगा। ओके, तो आपका अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगा? आइसोटोप। और अगर आपका कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो क्या कहलाएगा? आइसोबार। ओके, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? बेस में, और मास नंबर कहाँ लिखते हैं? पावर में। ठीक है, तो आप देखना किसी का पावर अगर सेम आ रहा है तो वो आइसोटोप आ रहा है, और किसी का अगर मास नंबर अगर बेस सेम आ रहा है, मतलब पावर सेम आ रहा है, तो वो आइसोबार है, और अगर बेस सेम आ रहा है तो वो आइसोटोप है। ठीक है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है, जस्ट सी दिस। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये आइसोटोप कौन सा पेयर है। Isn't that? Who will tell me? Vanshika, can you tell me what is the isotope here? Which pair is referred as isotope here? No. Yash? Yash? Yes. I'm First tell your option A. name. Ma'am, Kushil. Kushil, tell me. Option A. Option A. What is that? This isotope. Correct. Good. Next. Next it is Millie.
Yes, ma'am. Billy, can you tell me question number 7 answer? Out of the elements, which is chemically more reactive and why? देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करते, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या ना कौन से ऐसे एलिमेंट है? Yes. आप कोई भी बता दो, ऐसा नहीं आप ही बताओ, कोई भी बताओ, पूरे पीरियोडिक आपका जो एलिमेंट्स है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो रिएक्ट ही नहीं करते, जिसको मैंने जैसे आपको बताया भी था, एवरी एलिमेंट ट्राई टू बी लाइक दैट। What are the name of that particular elements? They are called as noble gases. Neon. Neon. Noble gases only. They are called as noble gases. Noble gases में आपका जो रहेगा, they are what starting elements आपका helium से लेके noble gases. Okay? तो noble gases में आपका अगर ये जो elements है जैसे helium, okay, helium, neon, argon, इसके आगे तो क्रिप्टन ज़ेरॉन चला जाएगा, वो आपको नहीं आएगा क्योंकि वो एटॉमिक नंबर आपके 20 से क्रॉस कर जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा आपका। ये तीनों याद रखना कि अगर ये तीनों अगर आ गया, ये नोबल गैसेस है और ये स्टेबल होता है, ये रिएक्टिव नेचर के नहीं होते। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10 और आर्गन का 18। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी 9th क्लास की लेवल की बात कर रही हूँ, 10th लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, 10th और 11th लेवल, तो आपका भी तो 20 तक एलिमेंट्स ही है। तो अगर आपको ये 3 एलिमेंट्स अगर कोई आ गए और आपसे पूछ रहा है कि कोई कि गिवन एलिमेंट इज रिएक्टिव और नॉट, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैसेस, और ये क्या है, स्टेबल होते हैं। अब आप देखो इसमें आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें से ऐसा कोई है जिसके बाद जिसका सेम एटॉमिक नंबर ऐसा अभी जो बताया था मैंने 2, 10, 18 है क्या? मैम 18। यस, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आया? अभी जो दूसरा की पॉइंट बताया था याद रखना, अब जो की पॉइंट बता रही हूँ उसको भूल मत जाना, नहीं तो फिर एग्जाम में ऐसे ही करूंगी। ओके? तो आपको अगर ऐसा पेयर आया और पूछा कि विच इज रिएक्टिव, विच इज नॉट रिएक्टिव, तो आप देखना अगर उसका एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है या फिर 18 है, तो वो नॉन रिएक्टिव है, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, मानवी, शी इज नॉट देयर। मिली, मिली, Yes, ma'am. now tell me, if an element is having the valency, if an element is having the valency +3, if an element is having as valency charge as +3, what will be its formula with phosphate? phosphate के साथ उसका फॉर्मूला बनाओ। एक एलिमेंट दिया गया है, एक आयन दिया गया है जिसका चार्ज है +3, आप उसका फॉर्मूला बनाइए फॉस्फेट के साथ। Ma'am, I'm unable to make You are not able to formula. make. मृदुल, Yes. मृदुल, Yes, ma'am. can you tell me, if the ion is if an ion is given to you, its charge is +3, you make its formula with phosphate ion. Can you make it? What you people are thinking so much, I don't know.
मैंने आपको बताया था अगर एक एलिमेंट दिया है, सपोज ये X है, इस पे चार्ज है +3, फॉस्फेट है, फॉस्फेट का आपका चार्ज क्या होता है PO4 3-, तो इसका चार्ज हो गया -3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा X3 PO4 थ्राइस। लेकिन ये जो रेशियो है ये बैलेंस हो सकता है, इसलिए ये बैलेंस कट आउट हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा XPO4। इज इट क्लियर? द फाइनल फॉर्मूला विल बी XPO4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now you tell me what will be. Sheetal, tell me what will be the formula. Sheetal, are you there? Okay. If a compound is having the formula X3PO4, if a compound is having the formula X3PO4, अगर एक कंपाउंड का फॉर्मूला है X3PO4, okay, what will be the formula of X with sulfate? X3PO4 is the formula of the compound. Okay, you have to make the formula of X with sulfate. सल्फेट के साथ इसका फॉर्मूला बनाइए। शीतल, कैन यू टेल? Ma'am, don't know. Anybody else? Vanshika? Vanshika, Yes, ma'am. if an element is having the formula X3PO4, what will be the formula of X with sulfate? I don't know, ma'am. May I tell, ma'am? Yes, name please. Bhumi Kochar. हाँ भूमि, tell. Ma'am, X2SO4 X2SO4 thrice. X2SO4 thrice. thrice. Correct, good. X2SO4 thrice, correct है। यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि X एक एलिमेंट है और इसका फॉर्मूला फॉस्फेट के साथ X3PO4 है। अब कोई भी फॉर्मूला बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बनता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर कोई जो बेस आया वो सिंप्लीफाई होगा तो ही हम उसको कट ऑफ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पे जो है X के बेस में 3 है और फॉस्फेट के बेस में क्या है 1 है। ठीक है, फॉस्फेट के बेस में 1 है, तो ये जो चार्ज रहा होगा ये फॉस्फेट का चार्ज तो -3 होता है, सबको पता है। ठीक है, यानी कि ये जो फाइनल वैल्यू आई है ये बैलेंस होने के बाद नहीं आई है, ये फॉस्फेट का चार्ज है। तो एक्स का चार्ज क्या होगा 1 होगा, तो एक्स का चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स का चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा भूमि, या टोल्ड रॉन्ग, X2 it is correct, wrong. भूमि Yes, ma'am. आपका ये फॉर्मूला गलत हो गया बेटा, SO4 थ्राइस नहीं आएगा। Ma'am, Ma'am, may I tell? X का होगा X2SO4 होगा, X2SO4 will be the formula X2SO4। क्यों? क्योंकि अभी देखो X का चार्ज क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X का चार्ज फॉस्फेट में मल्टीप्लाई हुआ है, फॉस्फेट का चार्ज X में मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि ये जो 3 है ये फॉस्फेट का चार्ज है, 1 जो है वो X का चार्ज है, यानी X का चार्ज हुआ 1 + 1 और सल्फेट का चार्ज होता है -2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा X2SO4 हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? Okay. Now can you tell me X is a metal or a non-metal? Metal. It is a metal. Okay. Next. Now next, this question number 11. Question number 11. There is 2 Rishabh Jain.
Ma'am, what is question number 11? Question number 11 you answer. Chemical formula of a metal sulfate is MsO4. Ma'am, can't see screen. Can't see the screen. Wait, again I will share. Question number 11, last. Can you tell me, Rishabh? Yes, I called you Rishabh only, na? In this class, there are two Rishabhs or what? Yes, ma'am. 2 Rishabhs. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, may I tell answer? Yes, tell. Yeah, I got Harit. Yes, your answer is correct. Okay. Okay. Got it, Rishabh. Got it. Now tell me. And one person has given the answer already. Harit has given the answer already. Tanmay, correct. Good. Yes, I am asking the formula. क्या होगा formula? Just tell me. कंपाउंड का फॉर्मूला है MsO4, है ना? और आपको पता है कि सल्फेट का चार्ज क्या होता है? -2, यानी कि यहाँ पे सल्फेट का चार्ज यहाँ पे -2 है। सल्फेट का चार्ज -2 होता है, यानी कि यहाँ पे तो -2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यानी कि ये बैलेंस हो गया है। यानी कि यहाँ पे भी मेटल का चार्ज क्या होगा? 2। तो यहाँ पे भी मेटल का चार्ज क्या होगा? 2। तो मेटल का चार्ज अगर +2 है और क्लोराइड का चार्ज है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा MCl2। क्या बन जाएगा? MCl2। ओके, इज इट क्लियर? तो मैंने आपको जो बेसिक पॉइंट्स बताए हैं ना, बेटा उनको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मैंने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया है, मैंने टाइम देखा अभी 9:38। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास में है मैं MCQ कराऊंगी जितना हो सके। ओके, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कर दो। बोस मॉडल के पोस्टुलेट्स और आपको ये जो आइसोटोप, आइसोबार और मास नंबर ये सब बताया ना, इसका भी देख लेना। अभी मैम आपका नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। हाँ, I will get one more class. हाँ, and those who are asking about my number, आप मेरे को नंबर देते रहिए, मेरे को नोट्स जल्दी जल्दी भेजो। ओके मैम, मैं आपको भेज दिया हूँ। हाँ, दो लोगों की मेरे को मिल गई है, ऋषभ की भी। मेरे को तो नहीं पता। मैम व्हाट्सएप में भेजना है। मैं भी भेज दिया हूँ। कल बेटा मैम नोट्स व्हाट्सएप में भेजना है या फिर आपके ईमेल में? कल आर यू देयर? यस मैम। कल बेटा आपने इमेजेस भेजा है, उसको मेरे को पूरा PDF पे बैठ के कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। बेटा आप कर दो उसको कन्वर्ट। मैं PDF में भेज दिया हूँ। मैम यस मैम नोट्स PDF बना के ही तो भेजना है ना? हाँ, PDF बना के ही भेजना है। तो मुझे इमेज में आपके व्हाट्सएप नंबर में? हाँ, अभी आपको नंबर भेजा ना, जो चैट में देख लो। यस मैम देख लिया। ठीक है मैम, यस मैं आपको ईमेल और फोन नंबर दोनों में सेंड कर दिया हूँ, देख लेना। कौन क्या है? हरित ना? गौरव। मैं भी भेज दिया हूँ तन्मय। मैं भी दोनों सेंड करो मैम। ओके, लेट मी चेक। मैम चारों सब्जेक्ट का PDF एक ही साथ बनाना है ना? चारों सब्जेक्ट का नहीं, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री को भेजोगे, बायो का बायो को भेजोगे, ऐसा? नहीं मैम, केमिस्ट्री में मतलब कि जैसे 4 चैप्टर है तो उसका तो एक ही साथ बनाना होगा ना? डोंट गो इन द फर्स्ट चैप्टर ओमिट हो चुका है, याद रखना। फर्स्ट चैप्टर यस मैम। 3 चैप्टर का बनाना है। इस मैटर अराउंड अस, प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस मैम। मैम I have also Yes, sent my ma'am. notes.
तो आप Ma'am, मैं can अभी you भेज tell दिया हूँ आपको। one more I time will which share, मेरे chapter पास we जो have to Moodle send? आया है मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है? क्लियर है? ओके? Ma'am, can you tell one more time which Okay, ma'am. chapter will come? At first is PT2 में नहीं है, बनाने की बात कर रही हूँ, एक ही है structure मैम of atom. आवाज नहीं आ रही. In PT2 only Ma'am, one chapter is there, structure of atom. Okay? Notes in आपको copy we have मैम नोट्स आपको 3 चैप्टर के बनाने हैं, जैसे आप हर बार बनाते हो. मैम सेकंड, थर्ड और फोर्थ. सेकंड, थर्ड और फोर्थ. करेक्ट? यस Done? मैम. So let's end our class here. Okay? बाय Goodbye, all मैम. of you. थैंक यू. Bye. Thank you, ma'am.